A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed each and every topic from your syllabus class 12th accountancy as per the syllabus of class 12th accountancy issued by CBSE for the session 2020-21. As you know very well, after completing the pre-board examination second, let's we move to the solution of the sum of the important questions related to the different topic. So now we are starting the today's video. So in today's video, let's we discuss the sample paper issued by CBSE on 9 October 2020. So you know very well your total paper divided into the two sections. Section A, which are related to the accounting of not-for-profit organization, partnership firm and companies, as well as the section B is related to the analysis of financial statement. So let me discuss all the types of the question asked by the CBSE in their sample paper. So the first question is, which of the following item is not deal through profit and loss appropriation account? The question is कि ये जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है. एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, द सेकंड ऑप्शन इज पार्टनर्स सैलरी, द थर्ड वन इज अ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड फोर्थ वन इज अ पार्टनर्स कमीशन. सो यू नो वेरी वेल, profit and loss account, profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of the profit and loss account, and profit and loss appropriation account record all the appropriation of the profit and loss which are related to the partners, excluding the interest on partners loan. You know very well, when any partner provide a loan to the partner, it will be treated as a charge against profit. It will not treated as an appropriation out of profit. So that's why the first answer of the first question is interest on partners loan, because जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो लोन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, जस्ट लाइक आउटसाइडर होता है. लेकिन अगर वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो एज ए इनसाइडर पैसा इन्वेस्ट करता है. सो ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यू नो वेरी वेल, व्हेन एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन द फर्म, यानी जब पार्टनर फर्म में क्या इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. यानी उस पर अगर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो इट विल बी नोन एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. बट अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो एज एन आउटसाइडर देता है अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई पार्टनर्स लोन पर अगर हम कोई इंटरेस्ट देते हैं सो इट विल बी ट्रीटेड एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एंड यू नो वेरी वेल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक अ पार्टनर्स सैलरी, like a interest on partners capital, like a partners commission. But interest on partners loan will be shown in the profit and loss account. Okay, so let's we move to the question number 2. So question number 2 is, for which of the following situation the old profit sharing ratio of the partner is used at the time of the admission of a new partner. बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इसमें से किस सिचुएशन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज अ सिचुएशन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन विच द न्यू पार्टनर entered into the firm and brings his share of goodwill, his share of capital to the firm. So what are the situation where we use the old profit sharing ratio? So very simple. The option is when new partner brings only a part of his share of goodwill, when new partner is not able to bring his share of goodwill,
when at the time of the admission goodwill already appears in the balance sheet and when new partner brings his share of goodwill in cash. So आपको तो पता ही है, जब भी किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लेकर आता है, साथ ही साथ गुडविल लेकर आता है. कैपिटल उसकी खुद की होती है, बट गुडविल जो होता है इट इज एन कंपनसेशन to the old partner, and this compensation is provided by the new partner to the old partner in their sacrificing ratio. Why? Because अगर हम बेसिक एग्जांपल से समझिए कि अगर एक घर में दो लोग रहते थे तो उस घर में दो रोटियां बनती थी, दो लोग बराबर बराबर एक एक रोटी खाते थे, या तीन रोटी बनती थी तो वन हाफ खाते थे. लेकिन जैसे ही एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो अब क्या होगा, तीनों के बीच में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करेंगे तो सबको एक एक रोटी आप देंगे. इट मींस जो पुराने पार्टनर थे वो पहले वन हाफ रोटीज कंज्यूम करते थे. अब उन्होंने क्या किया, अपना हाफ रोटी किसको दे दिया, न्यू पार्टनर को दे दिया, तभी तो जाकर उसकी बन गई एक एक रोटी. सो ड्यू टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है, बेसिकली जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं. सो इतना तो ध्यान रख लीजिए कि जब भी कोई पार्टनर गुडविल लाता है या नहीं लाता, वो गुडविल उससे मिलेगी उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यानी गुडविल का रिलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होता है, इसका रिलेशन ओल्ड रेशियो से नहीं होता. और गुडविल दो तरीके की होती है, यू नो वेरी वेल. द फर्स्ट वन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फर्स्ट गुडविल विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर, which are related to the new partner, which brings his share of goodwill or in cash or not. Second होता है, the most important is goodwill already appear in books of account. You know very well कि अगर हम और मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दो पार्टनर हैं और उन्होंने पहले से किसी बिजनेस को चला रहा है तो उनकी पहले से कोई ना कोई गुडविल होगी. और अगर एक नया पार्टनर मिस्टर ए जाता है तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, इट मीन्स जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी प्लेस्ड है, उसे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, बिकॉज जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट. गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन balance sheet, it will be distributed by old partner in their old ratio. So now let's we move to the question number 3. तो इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड प्लीज किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को, स्पेशली जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको आंसर देते वक्त उसके जो सारे इफेक्ट हैं, जो उससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स उसको रिकॉल करना चाहिए. ओके. So third one is reserve capital is not a part of. What is reserve capital? पहले तो यही क्लियर कर लीजिए. What is reserve capital? The reserve capital is a portion of the capital which is not called by the company. It is called by the company at the time of the liquidation of the company. यानी reserve capital का वो पार्ट होता है कंपनी की जिसे कंपनी अपनी लाइफ में नहीं कॉल करती. उसे कंपनी कब मांगती है, एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. सब क्लियर है कि रिजर्व कैपिटल, क्या ये सिचुएशन है या ऐसी कोई संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो उसको पैसा मिलेगा? क्या एथोराइज में से मिलेगा, सब्सक्राइब में से मिलेगा, अनसब्सक्राइब में से मिलेगा, इशूड से मिलेगा? तो देखो, एथोराइज का पार्ट हो सकती है क्योंकि एथोराइज का ही तो सारे पार्ट होते हैं. इशूड का हो सकती है, सब्सक्राइब का हो सकती है. अनसब्सक्राइबर, अगर हम कहें कि मैंने 100 शेयर इशू किया मार्केट में, ठीक, और 100 शेयर में से 80 शेयर सोल्ड आउट हो गए, 20 नहीं हुए, तो जो शेयर सोल्ड आउट नहीं हुए, जो सब्सक्राइब ही नहीं हुए, तो क्या वो मेरी रिजर्व कैपिटल के पार्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझे पैसा ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदा ही नहीं. तो जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो हमें क्या कर सकते हैं, रिजर्व कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं. बिकॉज रिजर्व कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियरली यही है, द कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी एट देयर लाइफ टाइम, मीन्स जब वो वर्क करती है तब वो उस कैपिटल को डिमांड नहीं करती है. इट इज डिमांड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. सो द राइट आंसर इज
the reserve capital is not a part of unsubscribed capital. Unsubscribed capital. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए थे कि यू विल गेट कंफ्यूज्ड. Authorized, issued, subscribed, fully paid up, not fully paid up, called up, paid up. याद है पूरा सीक्वेंस था. So अगर हम कहें सब्सक्राइब किसका पार्ट है? Authorized का ही पार्ट है. Issued किसका पार्ट है? Authorized का ही पार्ट है. सब्सक्राइब किसका पार्ट है? Issued का ही पार्ट है. तो उसी में रिजर्व कैपिटल भी आएगी. बट जब हम सब्सक्रिप्शन में आते हैं सब्सक्राइब में तो उसमें दो क्राइटेरिया बन जाती है. कुछ शेयर होल्ड आउट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. तो जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं सब्सक्राइब, जो नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? अनसब्सक्राइब. ठीक है. Okay, so let's move to the fourth question. Sports Star Charitable Club has an income of rupees 60,000 and deficit debited to capital fund of rupees 4,300 for the year 2019-20. Then expenditure for the year 2019-20 is, कह रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स चैरिटेबल क्लब है जिसकी इनकम है 16,000 रुपए, उसकी इनकम है 16,000 and the deficit is, deficit मतलब loss, deficit कितना है? 4,300. So what is the amount of expenditure? आपको ये बताना है. So आपको बताना है एक्सपेंडिचर कितना हो. तो सिंपल सा केस है. अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते तो जल्दी जल्दी बताओ. इनकम को कहाँ लिखते? इस साइड लिखते. डेफिसिट को कहाँ लिखते? इसी साइड लिखते. तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज्यादा होगा ना, बिकॉज डेफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. तो आप टोटल करके देख लो 20,300. इधर भी कितना आना चाहिए? 20,300. तो ये इनकम हो गई, ये डेफिसिट हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20,300. यस, ऑप्शन में भी गिवन है. Now we are moving to the next question. The question number 5. At the time of the dissolution of the partnership firm, general entry for the settlement of loan advanced by the firm to the partner would be. Listen. At the time of the dissolution of partnership firm dissolve हो रही है. आपको जनरल एंट्री बतानी है. The settlement of loan advanced by the firm. यानी आप किस फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया था, ठीक है ना, टू द पार्टनर ने लोन दिया था. तो आपको पता है पार्टनर्स जब भी कोई लोन देता है इट विल बी नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. यस सर, पता है. तो रियलाइजेशन अकाउंट से मैं उसका पेमेंट तो करेंगे नहीं. अगर रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट करते तो क्या एंट्री करते? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट लोन अकाउंट के लिए वी प्रिपेयर द सेपरेट लोन अकाउंट, बिकॉज इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की चीजें होती हैं. जब भी हम एक्सटर्नल लोन की बात करते हैं, लाइक मिसेस एक्स लोन, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने फर्म को क्या दिया? लोन दिया. तो थर्ड पार्टी अगर हमको कोई लोन देती है उसका हम पे ऑफ करते हैं तो वो कहां से करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट से पे ऑफ करते हैं. लेकिन अगर किसी भी लोन का पेमेंट थर्ड पार्टी के थ्रू किया जाता है, ठीक है, अगर किसी भी कोई ऐसा लोन हम पे ऑफ कर रहे हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, सो इट विल बी रिलेटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट. लिखा है ना, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर. सो द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स loan account. Number 6. The next question is, a company forfeited 4,000 share of rupees 10 each, on which application money of rupees 3 has been paid. कह रहा है कंपनी ने 4,000 शेयर फॉरफीट किए 10 रुपए के, जिसपे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए मिल चुका है. आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप and 4,000 has been transferred to capital reserve. The question is, calculate the rate at which these share were reissued. So let's we discuss. So पहले हम क्या करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया, शेयर को फॉरफिट किया। हाउ मेनी शेयर विल बी फॉरफिटेड बाय अस, दैट इज इन 4000। तो एंट्री क्या होती है, मैं एंट्री की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। ओके, हाउ मेनी शेयर विल बी फॉरफिटेड, 4000। एक शेयर कितना है 10 रुपीज का, सो 40,000 शेयर कैपिटल। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जितना पैसा मिला, कितना मिला, 3 हैज बीन पेड, सो 4000 इंटू 3, 12,000 हमको मिल गया। कितना नहीं मिला हुआ, 28,000, यानी फॉरफीट करने पे आपको फायदा कितना हुआ, 12,000 रुपीज का। उसके बाद आपने 2,000 शेयर रीशूट कर दिया, तो इनकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाउ मेनी शेयर रीशूड बाय अस, दैट इज एन 2,000 शेयर। ओके, 2,000, एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का, सो 20,000। आपको ये बताना है कि हम कितने पे शेयर को रीशू करें कि जो हमारी थर्ड एंट्री आती है, याद है आपको, कैपिटल रिजर्व वाली, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। वो कितना है कि अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में, दैट इज इन 4,000। अब बताओ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये रीशूट प्राइस बताना है कितना रहे ताकि कैपिटल रिजर्व कितना हो जाए, 4,000। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 12,000 इज एन प्रॉफिट ऑन द 4,000 शेयर, और आपको कितने शेयर इशू किया, ओनली 2,000। 12,000 इज अ प्रॉफिट ऑन द 4,000 शेयर, और आपने इशू कितना किया, 2,000। सो 2,000 शेयर का प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000। आउट ऑफ देम आपने 4,000 रुपीज किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। याद है कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया, दैट इज एन 4,000। सो कितना अमाउंट बचा, 2,000, and this amount will be known as an amount utilized at the time of reissue. ये amount क्या होगा, amount utilized at the time of reissue. So share forfeiture कितना हुआ होगा यहाँ पे, 2,000. So 20,000 में 2,000 आपने यूटिलाइज कर लिया, so कितना आपको मिला होगा, only 18,000. क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच शेयर वे रीशूड। आपको रेट बताना है कि कितने रेट पे आपने शेयर रीशूड किया। तो 18,000 पे आपने शेयर इशू किया, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 2,000। सो द रीशू प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 9 रुपीज। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले हमने शेयर को फॉरफीट किया, ओके, फॉरफीट करने के बाद हमने रीशू किया। रीशू का हमें वैल्यू पता नहीं था, लेकिन हाँ हमको ये पता था कि हमें 4,000 रुपीज कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। सो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि टोटल फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफीचर शेयर इनटू रीशूट शेयर, उससे मैंने रीशूट शेयर का फॉरफीचर मनी निकाला, दैट इज 6,000। आउट ऑफ 6,000 हमने 4,000 शेयर विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सो रेस्ट ऑफ द मनी, दैट इज एन 2,000 will be utilized at the time of the reissue. So the reissue price of 2,000 share is 18,000, and the face value of such share, that is in 18,000. That is 9 rupees. How? 18,000 divided by 2,000. Okay. Okay. So let's we move to the next question. The next question is, on the basis of the following data, how much final payment will be made to a partner on the firm dissolution? And the information is credit balance of capital amount, credit balance of capital amount, that is 50,000, and share of loss on realization, share of loss on realization 10,000, and firm's liability taken over by him, firm's liability taken by him, मतलब जिसका हम फाइनल पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 8,000। फिर से ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन द फर्म डिसोल्यूशन।
इट मीन्स आपको फॉलोइंग डाटा से ये बताना है कि आपको कितना पार्टनर को फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा अगर उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 50,000 हो, रियलाइजेशन पे लॉस हुआ हो और उसमें उसका शेयर हो 10,000 और उसने फर्म की लाइबिलिटी भी टेकन ओवर की हो, दैट इज एन 8,000। तो बताइए क्या होगा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कहां लिखते हो सर? क्रेडिट साइड लिख दिया, कितना है 50,000। अगर किसी भी पार्टनर को रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है, इट विल बी पोस्टेड इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। इट इज यस करेक्ट, इट इज एन डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो रियलाइजेशन में आप क्या लिखोगे 10,000। थर्ड वन इज फर्म्स लायबिलिटी टेकन बाय हिम। फर्म की लायबिलिटी किसने टेक ओवर कर ली? उसी पार्टनर ने। अब आप खुद सोचो, लायबिलिटी किस साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड एंड एसेट्स राइट हैंड साइड। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में इफेक्ट करेगा, जस्ट क्रॉस। और एसेट्स अगर टेक ओवर करेगा तो वो किस साइड करेगा? डेबिट साइड। सो इसने क्या टेक ओवर किया? लायबिलिटी। तो इसे हम कहां पोस्ट करेंगे? इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट इज इन 58,000। इधर कितना आ रहा है? 10,000। सो बैलेंस इज 48,000 paid by the firm on the dissolution of the partnership firm. So the amount is 48,000. Okay. Now we are moving to the next question. The next question which are related to the Arun and Varun. Arun and Vijay are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:1. Liabilities not given. Assets machinery 40,000. If value of machinery the balance sheet is undervalued by 20%, then what value will machinery be shown in the new balance sheet? अब आप पहले ये सोचो, एक बैलेंस शीट गिवन है, जिस बैलेंस शीट में, ठीक, एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में मशीनरी जो है वो गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? मशीनरी की वैल्यू है दैट इज इन 40,000। ठीक है, और नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ वैल्यू ऑफ मशीनरी इज द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, यानी वैल्यू ऑफ मशीन इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। अगर मशीन की वैल्यू अंडर वैल्यूड है 20% से, ठीक, तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो मशीनरी कितनी दिखेगी? ये जो वैल्यू है वो 20% कम पे वैल्यू है। इट मींस अगर हम माने लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन इज 100, अगर मशीन की एक्चुअल वैल्यू 100 है और अंडर वैल्यूड कितना हो गया? 20%, सो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? उसकी बुक वैल्यू होगी 80। इज दैट क्लियर? 100 रुपीज की मशीन है, अंडर वैल्यूड हो गई 20% से, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? 80। सो अगर उसकी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो, यानी न्यू वैल्यू, सो वी कैन से दैट 40,000 divided by 80 into 100, so it will be a 50,000. So the 50,000 will be shown in the asset side of the balance sheet. यही 50,000 हम शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यानी जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वी शो द 50,000 इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कुछ चीजें आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्स, टेक्स, फ्लेक्स आर पार्टनर इन अ फर्म in the ratio of 5:3:2. As per their partnership agreement, the share of a deceased partner is to be calculated on the basis of the profit and turnover of the previous accounting year. Tax expired on 31st December 2029. Turnover till the date of the debt was 18 lakh and the profit and turnover for the year 2018-19 is 4 lakh and 20,000 respectively. An amount will be given to his executor
as his share of profit till the date of death. So 3 पार्टनर थे, रेक्स RTF कह सकते हो, रेक्स टेक्स एंड फ्लेक्स। उनका रेशियो था 5:3:2 और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, किस बेसिस पे? टर्नओवर बेसिस पे। तो फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला याद है? यस। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट divided by previous year sales into current year sales, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते थे हम लोग his share of profit से। अगर डिसीज्ड पार्टनर का अगर हमें शेयर निकालना है तो ये किसका फॉर्मूला है? डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। अगर हमें कोई ऐसे पार्टनर्स की प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है जिसकी डेथ हो जाती है, सो द फॉर्मूला इज दिस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 4 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है? 20 लाख। एंड करेंट ईयर की सेल्स कितनी है? 18 लाख। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया है? गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है किसकी डेथ हुई है? दैट इज इन डेथ हुई है टैक्स की। सो टैक्स का रेशियो था 5:3:2, दैट इज इन 5 3:10 3:10। सो अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी कैन सी दैट 5 एंड दिस विल बी अ 0 0 5 3s are 15 6 1 2 3 36,000 into 3, that is in 0 0 0 1,08,000. So the right answer is 1,08,000. So एक बार मैं इसको मैच करा लूँ ताकि I am confirmed about it this is a correct answer or not. So the right answer is yes, 1,08,000 is a correct answer. Okay, so this is the solution of Rex, Tex and Flex, and we calculate the profit of Rex share of profit. Okay, so let's move to the question number 10. Retirement or death of a partner will create a situation for the continuing partner which is known as, listen carefully, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, तो ये किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है? द ऑप्शन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस एंड नन ऑफ दीज। सो जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर करता है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि यू नो वेरी वेल देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, इट विल बी नोन एज एन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, एंड द एग्जांपल ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, in other words we can say that the reconstitution of the partnership form are change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement of the existing partner, retirement of the existing partner, death of existing partner. So when we are talking about the dissolution of the partnership form, so it will be known as the complete liquidation of the partnership form. So जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है या वो रिटायर होता है, तो वो किस क्राइटेरिया में काउंट होता है? इट विल बी काउंटेड अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और जिसे हम बोल सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। या तो पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और पार्टनरशिप जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। ओके,
So now let's we take the one more question. Pick the odd one out. आपको इन चारों में से कोई एक चीज odd होगी, वो आपको count out करनी है. So the next question is, pick the odd one out. Pick the odd one out. And the option are rent to partner. पार्टनर को अगर रेंट दिया. नंबर सेकेंड, मैनेजर्स कमीशन. नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ओके, एंड लास्ट वन इज अ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. आपको चारों ऑप्शन से ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से ऑड क्या है. ऑड मतलब इन चारों में से कोई एक आइटम ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो. सो इन चारों ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें, रेंट टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई रेंट देते हैं तो इस विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैनेजर को कमीशन देते हैं तो उसको भी हम लोग कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. Interest on partners loan, it is also shown in the profit and loss account, but interest on partners capital, it will be shown in the profit and loss appropriation account. Rent, managers commission, interest on partners loan, ये देना compulsory होता है whether there is a profit or loss, but interest on partners capital, it is not a compulsory expenses. It is a type of the expenses which are paid only at the time of the sufficient profit are available in the partnership firm. So the right answer is option D, that is an interest on partners capital, which is shown in the profit and loss account. That's why it is odd from the others. Okay, so please frame out and list out all the answers given in this videos. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.